Hello everyone, I welcome you to my channel which is Legal Pedagogy, and in this video we are covering important MCQs from Indian polity, as Indian polity plays a very crucial role if you are preparing for any of the law entrance examination, whether it's 5-year LLB entrance or 3 years LLB entrance. Apart from this, we are running certain courses for law and polity and current affairs. For this, you have to just download our mobile application, go to the store section and you can purchase those batches. बट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसा एंट्रेंस नहीं है जिसको खाली एक कोचिंग के माध्यम से निकाला जा सकता है। आपको खाली अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। आप जरूर सक्सीड कर सकते हैं अगर आप किसी कोचिंग में भी इनरोल अपने आप को नहीं कराते हैं। पर अगर आपको इन कोर्सेज को अवेल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पे उसका लिंक दे दिया है। The first question is, the maximum total strength of Supreme Court including Chief Justice of India is? So friends, the maximum sanctioned total strength of Supreme Court including the Chief Justice of India is 34. It includes Chief Justice of India as well. और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट अपनी मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से फंक्शन भी कर रहा था, बट द वेरी नेक्स्ट डे एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो रिटायर कर गए, जिसकी वजह से अब जो करंट में टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को मिला के वो है 33। अभी एक वैकेंसी फिल होना बाकी है, तो ये बात आपको याद रखनी है। द मैक्सिमम टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 34। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? So the option A is the governor can pardon death sentence. This is absolutely wrong because the power lies with the president only. Only the president can pardon a death sentence as per the recommendation of Home Ministry. Home Ministry will send a recommendation to the president and then only he can pardon a death sentence of a convict. पर एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, तो उसको लेके एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो गए और केईओ के मन में सवाल आ गया कि क्या उस जजमेंट के बाद गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस भी पार्डन कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उस जजमेंट में कहा यह गया था कि अगर मानिए कोई ए है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें सजा डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, ठीक है, पर उसको जो सजा दी गई है वो दी गई है लाइफ इंप्रिजनमेंट की, आजीवन कारावास की। तो एक प्रोविजन है सीआरपीसी का जो कि ये कहता है कि अगर ऐसा कोई केस है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई है तो जब तक वो 14 साल जेल में सजा नहीं काट लेगा तब तक उसकी इस लाइफ इंप्रिजनमेंट को पार्डन नहीं किया जा सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर जजमेंट में ये बोला है कि अगर पर गवर्नर चाहे, अगर राज्यपाल चाहे, तो ऐसे इंसान को जिसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है तो वो 14 साल से पहले भी उसको पार्डन दे सकते हैं। तो ये स्पेशल पावर गवर्नर की बताई गई है इन दिस पर्टिकुलर केस। उसको इस बात से कंफ्यूज मत करिए कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट is exercised by him as per the recommendation of Home Ministry. The next question is, in which year was the collegium system for the appointment of judges adopted by the Supreme Court of India? So collegium system was adopted in the year 1993. So how are the Supreme Court judges appointed? The Chief Justice of India consults the 4 senior most judges of Supreme Court and then he recommends the name to the president and then the president appoints the Supreme Court judges. So this is the process which is followed as per the collegium system. The next question is, which of the following statement is correct with regard to UPSC? So a chairperson of UPSC, the person who is the chairperson of UPSC, he is appointed by the President of India. This statement is correct. The next statement is ineligible for reappointment to that office. This is also correct because अगर एक बार कोई चेयरमैन बन जाता है, चेयरपर्सन बन जाता है यूपीएससी का, तो उसके बाद वो फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years or till the age of 65, whichever is earlier. This option is also correct.
So the correct answer is option 1, that is all of the above. You have to remember all of these. The next question is, which authority conducts panchayat elections? All the local level elections, which includes municipality as well as panchayat, all these elections are conducted by State Election Commission. Remember this point. This is very important. And not by Central Election Body. The next question is, delimitation of constituencies is done by whom? Why is this important? Because recently there has been a delimitation of constituencies which has been done in Jammu and Kashmir. And as per that delimitation commission, Jammu will have 43 seats in legislative assemblies and Kashmir will have 47 seats in legislative assembly. So delimitation of constituencies is done for Lok Sabha elections as well as for legislative assembly elections, जिसमें किसी भी स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है. एमएलए लेवल के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज और लोकसभा चुनाव के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिससे कि डिसाइड हो पाए कि इतना एरिया के लोग इस एमएलए के लिए वोट करेंगे और इतने एरिया के लोग इस एमपी के लिए वोट करेंगे. ये डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होंगे, ये विलेजेस इसमें कवर होंगे. सो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डन बाय डिलिमिटेशन कमीशन. The next question is, which statement is correct with regard to residuary powers? Now, what are residuary powers? In Schedule 7, if you will see, there are 3 lists: union list, concurrent list and state list. स्टेट लिस्ट में खाली स्टेट्स कानून बना सकते हैं, कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं और यूनियन लिस्ट में खाली पार्लियामेंट कानून बना सकती है. सो रेजिड्यूरी पावर्स आर द पावर्स व्हिच हैव बीन असाइन्ड टू द यूनियन पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन दोज सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन आइदर ऑफ दीज लिस्ट. ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो कि किसी भी लिस्ट में कवर ना हो, उनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो दिया गया है यूनियन पार्लियामेंट को, और इसी को ही कहा जाता है रेजिड्यूरी पावर्स. सो रेजिड्यूरी पावर्स हैव बीन गिवन टू यूनियन पार्लियामेंट. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लेस्ड रेजिड्यूरी पावर्स विद द गवर्नर जनरल. दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. Then option C is the final authority to decide whether particular matter falls in residuary power or not is with the parliament. This option is wrong because this power is given to Supreme Court. Supreme Court के पास ये power है डिसाइड करने की कि क्या कोई पर्टिकुलर मैटर रेजिड्यूरी पावर में आता है या नहीं आता है. तो खाली ए और बी करेक्ट है. ओनली ए एंड बी इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टेन्योर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज. सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज द पर्सन हु डील्स विद आरटीआई. सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टेन्योर है, ही एंजॉयज सच अ टर्म व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ हो, या फिर टिल ही अटेन्स 65 इयर्स ऑफ एज. तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का क्या टेन्योर रहता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई टर्म नहीं बताया है तो टिल ही अटेन्स 65 इयर्स ऑफ एज. दैट इज ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड is appointed by the central government. Central government appoints the chairman of Central Pollution Control Board, who works so that the pollution can be controlled all over India, and he makes policies for such a situation. The next question is, while deciding the question related to disqualification of a member of parliament, the president shall obtain the opinion of whom. तो जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो डिस्क्वालिफिकेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट, बट हाउएवर ही डज नॉट एक्ट एज पर हिज ओन डिस्क्रिशन. वो अपने मन मुताबिक निर्णय नहीं लेते हैं. ही हैज टू एक्ट एज पर द डिस्क्रिशन, एज पर द डिसीजन व्हिच इज कन्वेड टू हिम बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कहेगा कि हाँ इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, तब प्रेसिडेंट उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे. सो द प्रेसिडेंट हैज टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दीज वर सर्टेन क्वेश्चंस। और कई बार मैं देखता हूँ वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं पर लाइक करके नहीं जाते हैं, तो आप कम से कम जब वीडियो देख लेते हैं तो कभी भी शिक्षा वैसे तो फ्री में नहीं लेनी चाहिए, तो कम से कम आप इसको लाइक जरूर करके जाएं अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच।